हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनर क्लासेस। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का एमसीक्यूज, मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज फॉर टर्म वन। सो टर्म वन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो आप लोग यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन Ag सिल्वर इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ व्हाट? ऑप्शंस आर हियर: सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर ऑक्साइड और सिल्वर carbonate. So correct answer is B. Silver sulfate is the correct answer. When silver is exposed to the air, it gets a black coating of silver sulfate. So coming to the next question. Question number 2. Magnesium ribbon is rubbed before burning because it has a coating of what? Options are basic magnesium carbonate, basic magnesium oxide, basic magnesium sulfate and the basic magnesium chloride. So the correct answer is basic magnesium carbonate. It is coated with the basic magnesium carbonate, so we have to rub it before burning. Question number 3. Third question is which of the following statements about the given reactions are correct? Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2 hydrogen gas. Iron metal is getting oxidized, water is getting reduced, water is acting as a reducing agent and water is acting as a oxidizing agent. So the first one is iron metal is getting oxidized. This is oxygen here, so this is correct. Next one is a water is getting reduced. Water is getting reduced. Water यहाँ पे देखिए, वाटर रिड्यूस हो गया, सो वाटर इज द सेकेंड विन ऑल्सो करेक्ट. वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. वाटर इज इटसेल्फ रिड्यूस, तो इट इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो दिस इज नॉट करेक्ट. सो वाटर इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो 1, 2 and 4 is the correct. So the options are 1, 2, 3 wrong, 2, 4 wrong, 1, 2 and 4 is the correct answer and 2 and 3 is not correct. So in these reactions iron metal is getting oxidized, water is getting reduced and water is acting as a oxidizing agent. क्योंकि आपको पता है जो reduce होता है वो क्या करता है, as a oxidizing agent काम करता है, और जो oxidize होता है वो क्या होता है, as a reducing agent काम करता है, right? So coming to the next question, question number 4. Which of the following आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस? एक्सोथर्मिक होता है क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है. हीट क्या होता है, सिस्टम से बाहर निकलता है, ठीक है. सो बोलता है रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलैम. क्विकलैम में आप जब वाटर डालते हो तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है बहुत सारा. सो दिस इज द करेक्ट वन. सेकेंड वन डाइल्यूशन ऑफ एसिड. एसिड डाइल्यूट होता है तो क्या होता है, उसमें से भी हीट रिलीज होता है, तो दिस इज द करेक्ट ऑल्सो. थर्ड वन इज इवापोरेशन ऑफ वाटर. वाटर इवापोरेशन होने के लिए क्या होता है, एनर्जी लेता है. क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, जब गर्म होगा पानी को गर्म होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो ये कहता है रिलीज नहीं करता है, ये एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्ब करता है, तब इवापोरेशन होता है. सो दिस इज नॉट करेक्ट. एंड सिमिलरली सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर. कैम्फर को सब्लिमेशन होने के लिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसमें लाइट आग लगाते हैं, तो वो क्या लेता है, हीट एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है, तब जाके क्या होता है, सब्लिमेशन होता है कैम्फर का. सो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. So option A 1 and 2. So this is the correct answer and the rest one is wrong. Okay, so coming to the next question. Question number 5th. Oxidation is a process which involves. Oxidation में क्या होता है, options are there: addition of oxygen, addition of hydrogen, removal of oxygen, removal of hydrogen. So oxidation is the process in which addition of oxygen is takes place. So addition of oxygen is the oxidation. Clear? So coming to the next question, question number 6. So 3 beakers A, B and C each containing 25 ml of water were taken. A small amount of sodium hydroxide, anhydrous copper sulfate and the sodium chloride were added to the beaker A, B and C respectively. beaker A में क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, B में डाला कॉपर सल्फेट एंड C में सोडियम क्लोराइड. ओके, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट
देयर वेयर एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग इन ए एंड बी। ए एंड बी में क्या हुआ, ए एंड बी में क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। वेयर एज इन केस ऑफ द बीकर सी द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉल्स, क्या हो गया, ये डिक्रीज कर गया, या आप लिखिए डिक्रीज कर गया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन कौन से सही है बोल देखना है। इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर्ड, क्या बोला है, देखिए ए एंड बी में क्या होता है, सॉल्यूशन कंटेनिंग इन टेम्परेचर इंक्रीजेस इन द टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। सो इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर्ड, चलिए ये सही है, नो प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, इन बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर्ड, ये है गलत। इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर्ड, बीकर सी में क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, जब क्या होगा, टेम्परेचर फॉल होगा तो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। एंड इन बीकर सी एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस ऑकर्ड, बीकर सी में क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, तो बीकर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। सो ये द ऑप्शंस आर ओनली 1 नो, ओनली 3 नो, 1 and 4 yes, so option C is the correct answer. Coming to the next question, question number 7, the process of reduction involves, इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स, एंड दिस क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, ऑप्शंस आर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। हमने ऑक्सीडेशन में देखा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, क्लियर। सो दिस इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन किस वॉल्यूम में प्रेजेंट होते हैं वाटर में, देखिए 1:2, 1:1, 2:1 एंड 1:8। क्या बोला है, हाइड्रोजन H2O, क्या पूछा है आपसे, देखिए हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एंड ऑक्सीजन इज द सेकेंड। सो देखिए आप लोग पता होगा इसका वैल्यू इसको जाता है एंड इसका इसको जाता है। सो क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास में 1 और ऑक्सीजन कितने हैं 2। सो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बन के क्या बनाता है, वाटर बनाता है। सो ऑप्शन ए इज द correct, 1:2. Coming to the next question, question number 9, which among the following statements is true, is और are true, that means एक एक से ज़्यादा सही हो सकता है इसमें। बोला है exposure of silver chloride to sunlight for a long duration terms gray due to what, due to फर्स्ट वन है the formation of silver by the decomposition of silver chloride। क्या बोला है, exposure ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू द सनलाइट, आप सिल्वर क्लोराइड को AgCl2 को आप क्या करोगे, धूप में सनलाइट में आप डाल रहे हो तो क्या होता है, फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम ग्रे क्या होता है, टर्न्स जो इनटू द ग्रे बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, sublimation of silver chloride, decomposition of the chlorine gas from the silver chloride and oxidation of silver chloride. So first option is correct, the formation of silver by decomposition of silver chloride। क्या होता है ये, formation of silver by decomposition of silver chloride, because of this it turns into the gray। So option only 1, the first option is the correct। Okay, coming to the next question, so this is the last question of this video, question number 10, which of the following is an endothermic process। endothermic process में क्या होता है, इंडो मतलब इनसाइड, मतलब क्या होगा, हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, क्लियर। सो देखते हैं, ऑप्शंस आर डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स और रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। सो ऑप्शन 2 sublimation of dry ice। so this is the correct answer, in which
endothermic process. This is the endothermic process. Okay, so this is the 10th question of this video, and we are coming with a lot of videos of physics, chemistry and biology. Most probably 200 each question from physics, chemistry and biology, and we expect all the questions of the term 1 board will come from these videos, these questions. So this is the last questions. So keep watching, subscribe our channel and share with your friend. Thank you. Jai Hind.